हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल रिवाइज द टॉपिक वेसा प्रीविया, राइट। सो ये टॉपिक हमने करना है आज वेसा प्रीविया एंड दिस टॉपिक इज़ कमिंग अंडर ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट of all comes introduction. So vesa previa can occur on its own or with placental abnormalities such as velamentous cord insertion. ठीक है, vesa previa जो है ये अपने आप भी हो सकता है या फिर it can occur due to some associated condition like velamentous cord insertion. As you might have already heard of this condition, velamentous cord insertion. What happens in this is जो blood vessels होती है umbilical cord से वो directly placental mass के अंदर नहीं enter करके they traverse over the fetal membranes, right? So thus the blood vessels are not protected by the Wharton jelly within the cord. ठीक है, so जो blood vessels होंगी they won't be covering, they will not have the covering of Wharton jelly, right? And which will make fetal hemorrhage more likely to occur when the fetal membranes rupture. ठीक है, so this is the condition. See, in this picture you can see that like these are the membranes, these are the blood vessels which are not covered by the Wharton's jelly. ठीक है, and they will be lying near to the this internal os. ठीक है, so this is the condition which is called as vesa previa. Then comes the definition. So it is an incredibly rare condition but severe complication of pregnancy. ठीक है, rare condition है but if it occurs then it can occur in a severe form and which will lead to complication of pregnancy, right? In vesa previa some of the fetal umbilical cord vessels, ठीक है, कुछ fetal umbilical vessels जो होती हैं they run across or very close to the internal opening of the cervix as you can see here in the picture. ठीक है, it is present near to the internal os and these vessels are inside the membranes. ठीक है, कौन सी membrane है ये? amniotic bag membrane है, unprotected by the umbilical cord or the placenta. ठीक है, क्योंकि Wharton jelly इन्हें cover नहीं कर रही है, so they are unprotected by the umbilical cord or by the placenta. As such they are at risk of rupturing when the membranes break. तो जब amniotic fluid bag जो है वो rupture होगा तो there are chances कि ये जो membranes, ये जो blood vessels हैं they have the tendency to get rupture. ठीक है, so they are at risk of rupture when the membranes break or the water bag breaks. Then comes the incidence. So the prevalence of this particular condition is 1 out of 2500 to 5000 deliveries and fetal mortality rate may approach 60% if vesa previa is not diagnosed before birth. So if this condition is not diagnosed in the third trimester, right, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, तो देर आर लाइक 60% चांसेस ऑफ फीटल मोर्टेलिटी रेट. देन कम्स द कॉजेज. सो वन कॉज ऑफ वेसा प्रीविया इज एन अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी कॉल्ड वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन. ठीक है, ये भी आपको बताया मैंने, वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन. This is when the umbilical cord goes into the membranes resulting in vessels that are unprotected leading to the placenta. ठीक है, इसके अंदर बताया ना आपको भी मैंने फर्स्ट स्लाइड में कि जो umbilical cord blood vessels होती हैं they are directly entering the fetal membranes over. ठीक है, जो placenta की fetal membranes होती है ना, कोरियोन, ठीक है, उसके ऊपर रन करती हैं blood vessels in spite of entering into the placental mass which results in the vessels that are unprotected leading to the placenta, right? So for one cause is velamentous cord insertion. तो अगर velamentous cord insertion present है so it can probably lead to vesa previa. Then other causes bilobed placenta. ठीक है, bilobed placenta आपने पढ़ा है पहले. So where the placenta is in two pieces and in this cases the vessels may be unprotected where they cross between the टू लोब्स. ठीक है, तो अगर बाई लोब प्लेसेंटा है या इवन सक्शन प्लेट लोब प्लेसेंटा है, ठीक है, सो दिस कंडीशन कैन अराइज, दैट इज वेसा प्रीविया. देन कम्स दी रिस्क फैक्टर्स. सो रिस्क फैक्टर्स जो है आ जाते हैं आपके, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो अगर IVF से कंसीव किया है तो उसके साथ चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं किसके? वेसा प्रीविया के. Then next comes placenta previa, that is low lying placenta. Then next risk factor is C-section. So if the mother is having earlier C-section, history of prior C-section, so there are chances of her developing this particular condition. Then next है multiple pregnancy.
सो मल्टीपल प्रेगनेंसी इज़ द अनदर रिस्क फैक्टर, लाइक ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट्स है या क्वाड्रुप्लेट्स है, ठीक है, एंड सो ऑन. देन प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी, अगर यूट्रस में पहले कोई सर्जरी हुई है, सो दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, दैट इज़ वेसा प्रीविया. देन कम्स द सिम्टम्स एंड साइंस, ठीक है, क्लिनिकल पिक्चर हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. सो इन मैनी केसेस देयर आर नो सिम्टम्स ऑफ वेसा प्रीविया एट ऑल, ठीक है. कुछ केसेस जो होते हैं, वैसे तो रेयर कंडीशन है, लेकिन अगर ये अकर होती है कंडीशन, तो ज़्यादातर ये क्या होती है, सिम्टमलेस होती है, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक जिसे हम बोलते हैं. इट ऑफन गोज अनडिटेक्टेड अंटिल लेबर व्हेन द फीटस इज़ ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड, ठीक है, और फॉलोइंग अ स्टिल बर्थ. तो कई बार ये हम नोटिस ही नहीं कर पाते, इवन जब पेशेंट लेबर में होता है या जो फीटस होता है उसको ऑलरेडी फीटल डिस्ट्रेस्ड होता है, वो हो चुका होता है, या फिर जब स्टिल बर्थ बेबी डिलीवर होता है, तब हमें इसका डायग्नोसिस हम मतलब पता चल पाता है हमें इन सम कंडीशंस. देन द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेसा प्रीविया इंक्लूड, तो क्लासिकल सिम्टम्स इसके आते हैं, जैसे कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, देन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, देन फीटल ब्रेडिकार्डिया, ठीक है. ये जो है तीन जो हैं, दीज आर द क्लासिकल प्रेजेंटेशन और क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ दिस वेसा प्रीविया. Then here is one note for you all, that is the pregnant woman should seek immediate medical attention if they have any painless vaginal bleeding. तो अगर प्रेगनेंसी में वुमेन को कभी भी पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसको आके फॉलो अप करवाना है डॉक्टर के पास. अ साइन दैट अ वुमन माइट हैव वेसा प्रीविया इज़ इफ़ द ब्लड इज़ वेरी डार्क और बरगंडी रेड. अगर डार्क बरगंडी रेड कलर का ब्लड है जो ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, विच इज़ पेनलेस इन नेचर, दैट माइट इंडिकेट दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेसा प्रीविया. The blood of a fetus is naturally lower in oxygen than that of the mother. ये हमें पता है, ठीक है, हमने फीटल सर्कुलेशन पढ़ा था. सो जो फीटस का ब्लड होता है वो ऑक्सीजन कंटेंट उसके अंदर कम होता है इन कंपैरिजन टू द मदर. सो इफ़ द ब्लड इज़ डार्कर then what is typical, it could indicate that it has come from the fetus and not from the mother. तो अगर डार्क कलर का ब्लड है तो it will indicate that it is fetal in origin, as the oxygen content is less in the fetal blood in comparison to the mother's blood. Then next comes the diagnosis. So how you will make diagnosis for vesa previa. So सबसे जो easy तरीका है इसको diagnosis बनाने का, मतलब effective जो method है, that is TVS, that is transvaginal scan और transvaginal sonography, ठीक है, and which can be combined with the color doppler, ठीक है. color doppler से क्या होगा, जो images बनेंगी उसके अंदर कलर्स ऐड हो जाएंगे, जिससे कि जो टेक्नीशियन होंगे, रेडियोलॉजिस्ट होता है, उनको क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है और किस स्पीड से ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट. सो इसलिए कलर डॉपलर अलॉन्ग विद TVS स्कैन इज़ इम्पॉर्टेंट. देन बिकॉज ऑफ द रेयरिटी ऑफ दिस कंडीशन इट इज़ नॉट रूटीन स्क्रीन फॉर ऑल, ठीक है, क्योंकि रेयर कंडीशन है तो सारे पेशेंट को हम स्क्रीन नहीं कर सकते. इसके लिए द डॉक्टर विल प्रॉबेबली रिकमेंडेड दीज टेस्ट इफ़ अ वुमेन हैव वन और मोर ऑफ द रिस्क फैक्टर्स डिस्क्राइब्ड अर्लियर. तो डॉक्टर उसी केस में रिकमेंड करेंगे अगर उस पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमेन में कोई भी रिस्क फैक्टर, जो आपको मैंने 5 रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, उसमें से कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा. Then come vesa previa must be distinguished from Punic presentation. Punic presentation क्या होती है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, जो हमने पहले पढ़ा है टॉपिक, ठीक है. सो उसके साथ उसको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि उस कॉर्ड प्रोलैप्स में या कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स होती हैं दे आर वेल कवर्ड विद द वॉटन जेली, ठीक है, वो वॉटन जेली के साथ कवर्ड होती हैं. लेकिन वेसा प्रीविया के अंदर क्या है, जो ब्लड वेसल्स होंगी दे आर नॉट हैविंग द कवरिंग ऑफ वॉटन जेली, तो वो ऐसे ही पड़ी होंगी इंटरनल उसके पास. देन इन फ्यूनिक प्रेजेंटेशन और कॉर्ड प्रेजेंटेशन, अनलाइक इन वेसा प्रीविया, द अम्बिलिकल कॉर्ड मूव्स अवे फ्रॉम द सर्विक्स ड्यूरिंग द अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, कि जब हम अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, ठीक है, तो क्या होता है, अगर कॉर्ड प्रेजेंटेशन होती है तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो सर्विक्स से थोड़ा सा हट जाती है दूर, व्हेन वी आर डूइंग द अल्ट्रासोनिक एवैल्यूएशन. लेकिन वेसा प्रीविया में क्या होता है, जो कॉर्ड होती है वो फिक्स्ड रहती है, इट वोंट मूव हियर एंड देयर व्हेन द अल्ट्रासाउंड एवैल्यूएशन इज बीइंग अंडरगोइंग, राइट. सो दिस इज़ द यू कैन से मेथड ऑफ डिफरेंशिएटिंग फ्यूनिक प्रेजेंटेशन विद वेसा प्रीविया.
Then next comes management for vesa previa. So there is no way to prevent vesa previa, ठीक है, but if it can be diagnosed before delivery, then with proper management the chances of survival for the baby are excellent. So इस condition को prevent करने का तो as such कोई way out नहीं है, बट अगर डायग्नोसिस इसका डिलीवरी से पहले जो है वो बन जाता है, हमें पता चल जाता है, देन हम प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके हम बेबी के सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. देन इन सम केसेस वेसा प्रीविया में रिजॉल्व ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है. कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में पहले जो है वो पता चल जाता है, बट एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस the condition may resolve during the pregnancy. If the mother have been diagnosed with vesa previa in pregnancy, then her care provider will offer regular follow-up ultrasounds to monitor the condition closely. कैसे हम इसको प्रेगनेंसी में अपने आप ही रिजॉल्व हो सकता है, अगर जो है गायनेकोलॉजिस्ट जो है आपके, ठीक है, अगर वो इसको टाइमली फाइंड आउट कर लेते हैं और पेशेंट को फिर वो प्रॉपर रेगुलर फॉलोअप के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन्स के लिए एडवाइस करते हैं, ठीक है, और पेशेंट की कंडीशन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं. देन द एम इज़ मैनेजिंग द कंडीशन टू अलाउ द प्रेगनेंसी टू प्रोग्रेस फॉर एज लॉन्ग एज सेफ्टी अलाउज. ऐसा हम तब तक करेंगे कि देखने के लिए कि कितने टाइम तक हम प्रेगनेंसी को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो प्रेगनेंसी है में मदर है और जो बेबी है वो दोनों सेफली डिलीवर किए जा सके. द डॉक्टर विल बी एबल टू हेल्प वुमेन टू बैलेंस द रिस्क ऑफ अर्ली डिलीवरी विद द रिस्क ऑफ लेबर एंड रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. सो जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, ऐसा करने से रूटीन अल्ट्रासाउंड स्कैन से और रूटीन फॉलोअप से जो डॉक्टर होंगे, दे विल able to help the woman to balance the risk of early delivery with that of the risk of labor and rupture of membrane, ठीक है. इसलिए close observation will be there for the woman who has been diagnosed with this condition, that is vesa previa, during the pregnancy. Then next comes प्रीनेटल मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट कॉर्ड कंप्रेशन, ठीक है. तो प्रीनेटल मॉनिटरिंग इज़ ऑल्सो डन टू फाइंड आउट वेदर देयर आर चांसेस ऑफ कॉर्ड कंप्रेशन, वेदर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ कॉर्ड कंप्रेशन ड्यू टू द प्रेजेंटिंग पार्ट, राइट. देन सिजेरियन डिलीवरी, इस केस को डील करने के लिए जो मेथड ऑफ डिलीवरी हम ऑप्ट करते हैं जो सेफ होता है, दैट इज़ सिजेरियन सेक्शन, राइट. So prenatal management of vesa previa is controversial partially because randomized clinical trials are lacking, ठीक है. जो prenatal management है वो अभी controversial है whether it is effective or not, क्योंकि इसमें randomized clinical trials जो होती हैं रिसर्च में, ठीक है, that are lacking. So at most centers non-stress testing is done twice a week beginning in 28 to 30 weeks. तो सपोज़ किसी मदर को वेसा प्रीविया के साथ वो डायग्नोज हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हम क्या करेंगे, 28 to 30 वीक्स के आसपास हम स्टार्ट कर देते हैं उसका NST, दैट इज़ नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग, एंड विच इज़ डन ट्वाइस अ वीक. सो द पर्पस इज़ टू डिटेक्ट कंप्रेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड. क्यों करेंगे नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग? टू फाइंड आउट और टू डिटेक्ट कॉर्ड कंप्रेशन इफ़ इट इज़ देयर. Then admission for continuous monitoring or for non-stress testing every 6 to 8 hours at about 30 to 32 weeks is often offered, ठीक है. So इसके अंदर क्या किया जाता है, 30 to 32 वीक्स की जब प्रेगनेंसी पहुंच जाती है, ठीक है, तो हम पेशेंट को एडमिट भी कर सकते हैं फॉर कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग, है ना, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग के लिए और उसका NST के लिए, विच कैन बी डन एवरी 6 to 8 hours, ठीक है. देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज टू एक्सेलरेट फीटल लंग मैच्योरिटी, क्योंकि अभी इसमें हमें बेबी को पहले भी डिलीवर करना पड़ सकता है, ठीक है, तो हमें पेशेंट को कह देना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ताकि जो फीटल लंग्स हैं वो मैच्योर हो जाएं. देन एमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी इज़ यूजुअली इंडिकेटेड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, ठीक है. एमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ सकती है अगर इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो अराइज होती है, दैट इज़ प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, देन इफ़ वजाइनल ब्लीडिंग कॉन्टीन्यूज और इफ़ फीटल स्टेटस इज़ नॉन रीअश्योरिंग, ठीक है. तो इन कंडीशंस में हमें जो है वो एमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी जो है वो करनी पड़ सकती है. एंड इफ़ नन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंट एंड लेबर हैज़ नॉट अकर्ड, मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट नहीं है और पेशेंट को लेबर पेन भी नहीं हो रहा है, तो
जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगे दे कैन ऑफर टू शेड्यूल सिजेरियन डिलीवरी, तो हम क्या करेंगे, सिजेरियन डिलीवरी के लिए प्लान कर सकते हैं। देन सिजेरियन डिलीवरी बिटवीन 34 to 37 वीक्स हैज़ बीन सजेस्टेड कि 34 से 37 वीक्स के बीच में सी सेक्शन जो है वो सेफ़ है, बट द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, सो सम एविडेंसेस फेवर्स डिलीवरी एट 34 to 35 वीक्स। सो ओवरऑल यू कैन रिमेंबर कि सी सेक्शन जो है इन केस ऑफ वेसा प्रीविया अगर प्लान हम कर रहे हैं तो 34 to 35 वीक इज़ द सेफेस्ट टू डू द प्रोसीजर ऑफ सी सेक्शन। Then at the time of delivery of the baby, there will be a team on hand that can give the baby a blood transfusion in the event that there is a rupture of the blood vessel। तो हो सकता है कि सी सेक्शन करते समय जो बेबी को जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाहर, तो देयर आर चांसेस ऑफ रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अरेंजमेंट जो है वो होने चाहिए। इफ़ वन ऑफ द ब्लड वेसल्स इज torn, then surgeon may want to clamp the cord immediately to help minimize the amount of blood that the baby loses। ठीक है, तो अगर कोई ब्लड वेसल जो है वो टॉन हो गई, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, सो उसमें सर्जन क्या करेंगे, दे विल क्लैम्प द कॉर्ड इमीडिएटली, ठीक है, टू हेल्प मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, तो कॉर्ड क्लैम्पिंग कर दी जाती है ताकि जो ब्लड लॉस है वो कम हो जाए। देन इन सम केसेस द डॉक्टर में एडवाइज कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है, एंड पेल्विक रेस्ट इज़ ऑफन सजेस्टेड। पेल्विक रेस्ट का मतलब क्या है, वी विल एडवाइज द वुमेन नॉट टू हैव सेक्स during the pregnancy, ठीक है, if she is having this particular condition that is vesa previa। So thank you for listening. If you are having any doubts in this revision session, you can ask me via messages or calls. Thank you so much.